اور ناظرین، کراچی سیاحوں کے لیے دنیا کا دوسرا خطرناک ترین شہر قرار۔ سیاحوں کے لیے دنیا کے خطرناک ترین شہروں کی فہرست جاری۔ 100 میں سے کراچی کا اسکور 93.12% رہا۔ درجہ بندی میں بتایا گیا شہر کو سب سے زیادہ ذاتی سلامتی کا خطرہ تھا، جو جرائم، تشدد، دہشت گردی کے خطرات اور معاشی کمزوریوں کے خطرے کی عکاسی کرتا ہے۔ شہر قائد کو انفراسٹرکچر سیکیورٹی رسک کا سامنا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فوربس نے سیاحوں کے لیے دنیا کے 10 خطرناک ترین شہروں کی فہرست جاری کی، جس میں اول نمبر پر وینزویلا کا شہر کراکس ہے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان کا معاشی ہب کراچی ہے، جس کا اسکور 93.12% پر رہا، جبکہ اول نمبر پر آنے والے شہر کراکس کا اسکور 100 ہے۔ اسی طرح 91.67 اسکور کے ساتھ تیسرے نمبر پر میانمار کا شہر ینگون ہے۔ اس فہرست میں چوتھے نمبر پر نائجیریا کا کالاگوس، جبکہ 5ویں نمبر پر فلپائن کا منیلا، 6 نمبر پر بنگلہ دیش کا ڈھاکہ، 7ویں پر کولمبیا کا بگوٹا، 8ویں پر مصر کا قاہرہ اور 9ویں پر میکسیکو اور 10ویں پر ایکواڈورا کا کوٹیو شہر ہے۔ کراچی کی تاریخی علامت اور قومی ورثہ قرار دی گئی متعدد عمارتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ 1741 میں سے کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ کچھ خطرناک عمارتوں کی فہرست میں شامل ہیں تو کچھ بلڈرز مافیا کی بھیٹ چڑھ گئیں۔ عاجز جمالی کی خصوصی رپورٹ۔ 19ویں صدی کی شاندار تہذیب اور تاریخ تیزی کے ساتھ مسمار ہو رہی ہے۔ کراچی میں برطانوی دور کی بنی ہوئی تاریخی عمارتوں میں سے 1741 عمارتوں کو محکمہ ثقافت نے چند سال قبل سندھ ہیریٹیج ایکٹ 1994 کے تحت قومی ورثہ قرار دیا تھا، لیکن ورثہ قرار دی گئی متعدد عمارتیں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ ڈائریکٹر ورثہ محکمہ آثار قدیمہ مہدی شاہ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق ان عمارتوں کو اصلی حالت میں بحال رکھنا ہے۔ جو لینڈ مارک ہیریٹیج بلڈنگز ہوتی ہیں ان کے لیے تو ہم کام کرتے ہیں۔ پرائیویٹ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہے ہیڈڈ بائی دا چیف سیکرٹری اینڈ حمید ہارون صاحب۔ اس میں ریناؤنڈ آرکیٹیکٹ بھی ہیں، اس میں آپ کے سوشل مدد علی سندھی صاحب جیسے لوگ اور دوسرے اسکالرز بھی ہیں۔ اس میں ہوتا یہ کہ جیسے آپ کی پرائیویٹ بلڈنگ ہے، وہاں اس میں رجسٹرڈ کنسلٹنٹس بھی ہیں یا کسی اور کنسلٹنٹ سے بھی۔ حال ہی میں محکمہ اینٹی کرپشن کے ایک خط سے پتہ چلا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں قومی ورثہ قرار دی گئی 16 عمارتوں کو بلڈرز مافیا نے SBCA کی مدد سے منہدم کرنا شروع کر دیا۔ محکمہ آثار قدیمہ نے ان عمارتوں پر جاری کام کو رکوا دیا ہے اور نجی عمارتوں کے مالکان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے گرانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ بیکاز وی آر دا کسٹوڈینس، ہاؤ کوڈ وی ڈو دس؟ ہم نہیں گراتے اور ہمارے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے۔ بلڈنگ ڈیمولیشن کی پرمیشن یا ڈینجرس بلڈنگ دینے کی پرمیشن وہ SBCA کے پاس ہے۔ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہماری نالج میں کوئی آتا ہے، ہم اسی ٹائم وہاں پہنچتے ہیں، اس بلڈنگ کو فرسٹ آف آل ہم سیل کرتے ہیں، دین ہم اسی ٹائم SBCA کو لکھتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیا پرمیشن دی تھی۔ اگر وہاں سے آتا نہیں تو ہم اس کو بین کروا دیتے ہیں وہاں، اور ہم پھر آنر کے خلاف FIR لانچ کرواتے ہیں۔ کراچی کی تاریخی اور تہذیبی عمارتیں سرکاری محکموں کی غفلت کی وجہ سے بلڈرز مافیا کی بھینٹ چڑھ رہی ہیں۔ تاریخ اور تہذیب کو مسمار کر کے ان کی جگہ پر کثیر المنزلہ عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ اس شہر کا اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ 2 صدیوں کی تاریخ کو حکومتی ادارے اور بلڈر مافیا مل کر تباہ کر رہے ہیں اور 1.5 صدی قدیمی عمارتیں تیزی کے ساتھ گرائی جا رہی ہیں۔ کیمرہ مین فرحان احمد کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ بلوچ کالونی پل پر حادثے کا شکار ہونے والے آئل ٹینکر پولیس کے لیے امتحان بن گیا۔ 2 ہیکل ٹینکر کو 3 روز گزر جانے کے باوجود تھانے منتقل نہیں کیا جا سکا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے معراج اختر سے۔ معراج، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بلوچ کالونی پل کے قریب، جہاں 2 روز قبل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ آئل ٹینکر جو ہے وہ الٹ گیا تھا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق بھی ہوا تھا، اس کی کار بھی تباہ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد آئل پھیل گیا تھا، اور اس کے بعد 15 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد بلوچ کالونی پل کو کلیئر کیا گیا اور ٹریفک کی روانی بحال ہوئی تھی۔ لیکن جو متاثرہ ٹینکر تھا وہ آئل ٹینکر ابھی بھی
बलोच कॉलोनी पुल के बिल्कुल साथ मौजूद है। अगर मेरे कैमरामैन आपको आसमान दिखा सकें, ये वो टैंकर है जो कि हादसे का शिकार हुआ था और इसका सारा ऑयल भी काफ़ी हद तक जो है वो सड़क पर बह गया था। लेकिन उसके बाद इंतज़ामिया आई और मुख्तलिफ़ टीमों ने काम करते हुए इसको क्लियर किया। अब इस टैंकर को यहाँ इसलिए खड़ा किया गया है कि पुलिस का ये कहना है कि टीपू सुल्तान थाने की जानिब जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उसमें तंग गलियां हैं, छोटी गलियां हैं और ये जो टैंकर है उसमें एंटर नहीं हो पा रहा है। तो बहुत कोशिश की गई पुलिस की जानिब से और लेकिन ये थाने नहीं पहुंच सका और ये इस वक्त तक यहीं मौजूद है। और पुलिस का ये कहना है कि हमने 2 सिपाहियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है जो इसकी हिफाजत के लिए हैं। दिन की शिफ्ट में अलग काम कर रहे हैं, रात की शिफ्ट में अलग काम कर रहे हैं, लेकिन इसको थाने ले जाना मुमकिन नहीं है। और अब ये ज़राए से हमें मालूमात हुई कि जब तक ये केस चल रहा है, मुकदमा जब तक अदालत में चलेगा और जब तक अदालत अहकामात नहीं देती, जब तक ये ऑयल टैंकर सड़क पर इसी तरह खड़ा रहेगा। जी। ज़ेर ज़मीन पानी निकालकर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। वाटर कॉरपोरेशन ने चोरी का पानी फरोख्त करने वाले ऑपरेटर्स की फहरिस्तें मुरतब कर ली हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से। तफसीलात बताइएगा। देखें, बिल्कुल ये तीसरे मरहले का जो है वो ऑपरेशन का कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने रेंजर्स के हमरा ऑपरेशन का आगाज किया है। पहले फेज में जो है वो शहर में चलने वाले गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को जो है वो बंद कराया गया, मसमार किए गए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए। 244 गैर कानूनी हाइड्रेंट जो है वो चलाए जा रहे थे जिनको बंद कराया गया, उन पर मुकदमा हुए। उसके बाद दूसरे मरहले में वो तमाम गैर कानूनी जो कनेक्शन हासिल किए गए थे, मीठे पानी की चोरी की जा रही थी, तकरीबन 1100 के करीब जो है वो गैर कानूनी कनेक्शन जो है मुख्तलिफ शहर के मकामात पर जो हासिल किए गए थे बल्क और डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनों से, उनको जो है वो मसमार किया गया, उनको मुनक़ता किया गया। और उसके साथ साथ जो है वो अब तीसरे मरहले का ऑपरेशन का आगाज किया गया। ये ऑपरेशन जो है वो सब सॉइल ऑपरेटर की लाइनों में किया जाएगा और वो तमाम मकामात पे ज़ेर ज़मीन पानी की आड़ में जो मीठे पानी के कनेक्शन हासिल कर रखे थे, चोरी का पानी फरोख्त किया जा रहा था सनती एरिया में और मुख्तलिफ मकासद के लिए, उन तमाम कनेक्शन का जो है वो घेरा तंग किया जाएगा। सब सॉइल ऑपरेटर्स के जो है वो अब तक 17 लाइसेंस जो है वो भी मंसूख किए जा चुके हैं। 2018 में 34 लाइसेंस जो है सब सॉइल ऑपरेटर्स को कराची सीवरेज बोर्ड की जानिब से जारी किए गए थे, जबकि नए एक्ट के आने के बाद, कॉर्पोरेशन होने के बाद, वो तमाम जो मरहला है वो दोबारा से रिवाइज किया गया और नए कानून के तहत जो है वो दोबारा से लाइसेंसेज वाटर कॉर्पोरेशन जारी किए करेगा। उससे कबल जो है उन तमाम वाटर माफिया का सफाया किया जा रहा है शहर से, जो कि गैर कानूनी पानी के फरोख्त में, चोरी में मुलव्विस थे, उन तमाम को जो है कला कमा किया जाएगा। उसके बाद नए लाइसेंस का अजरा किया जाएगा, जिसके लिए लास्ट डेट की तारीख भी वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से जारी कर दी गई है। मुख्तलिफ मरहलों में जो है वो नए लाइसेंसेस हासिल करने के लिए सार्फिन जो है वो पे ऑर्डर की शक्ल में जमा करा के 25,000 रुपए का जो है वो फॉर्म हासिल कर रहे हैं, जबकि तीसरे मरहले के ऑपरेशन में उन तमाम मकामात पे जो है वो निशानदेही करने के बाद ऑपरेशन किया जाएगा, जिसकी फहरिस्तें भी जो है वो मुरतब कर ली गई है, पॉइंट आउट कर लिए गए हैं वो तमाम मकामात जहाँ पे रेंजर्स के हमरा वाटर कॉर्पोरेशन ऑपरेशन करेगा। जी बहुत शुक्रिया एहसन, आपने हमें अपडेट किया। और सिंध हुकूमत ने सूबे में कोऑपरेटिव बैंक चलाने से इनकार, बैंक पर 66 करोड़ रुपए कर्ज हो गया। सिंध असम्बली से बैंक के मुतालिक नया कानून मंजूर करने का भी फैसला हुआ है। तफसीलात जानेंगे आजिज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखिए ये सिंध का एक पुराना बैंक था, सिंध कोऑपरेटिव बैंक, जो बड़े अरसे से बंद पड़ा हुआ है। हाल ही में महकमे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का एक इजलास हुआ, जिसमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से तजवीज़ दी गई है कि इस बैंक को दोबारा बहाल किया जाए और इस बैंक के जरिए छोटे मोटे कर्जे दिए जाएं। लेकिन इजलास में बताया गया कि 66 करोड़ रुपए कर्जा है सिंध कोऑपरेटिव बैंक पर, लिहाजा इस बैंक को दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये फैसला हुआ है उसी इजलास में कि इस बैंक के बारे में एक नया कानून मंजूर किया जाएगा सिंध असेंबली से, और बैंक को इजाजत दी जाएगी कि काश्तकारों को, जमींदारों को और कारोबार करने वालों को कर्जे दिए जाएंगे, लेकिन ये कर्जा जो है सिंध बैंक और दीगर बैंकों से लिया जाएगा। सिंध कोऑपरेटिव बैंक से सिफारिश करेगी, कर्जा जो है वो दीगर बैंक देंगे। ये फैसला हुआ है महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के इजलास में। अब इसको असेंबली में बिल की शक्ल में पेश किया जाएगा और नया कानून होगा, लेकिन अब ये तय हो गया कि सिंध कोऑपरेटिव बैंक दोबारा बहाल नहीं हो सकेगा सिंध में। जी बहुत शुक्रिया आजिज, आपने हमें अपडेट किया।
स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 29 जुलाई को शरह सूद का फैसला करेगी। टॉप लाइन सिक्योरिटी रिसर्च मार्केट सर्वे के मुताबिक शरह सूद में 1% की कमी की तवक्का है, जबकि 25% की राय में शरह सूद 22.5% पर बरकरार रखने की राय दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं अशरफ खान से, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए टॉप लाइन सिक्योरिटी ने मार्केट सर्वे किया है, जिसमें जो पीर को मॉनेटरी पॉलिसी 29 जुलाई को आनी है, जिसमें कहा गया है 75% की राय में शरह सूद में 1% कमी की तवक्को की गई है, जबकि 25% की राय में शरह सूद 20.5% पर बरकरार रहने की तवक्को की है, जिसमें बताया गया है कि जुलाई 2024 में महंगाई की शरह 11% रहने की तवक्को की गई है। और साथ ही देखा जाए गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी को लेके अब तक टी बिल्स की नीलामी में जो कट ऑफ यील्ड है 83 से 84 बेसिस पॉइंट कमी हुई, उसी को देखते हुए शरह सूद में 1% की कमी देख रहे हैं। साथ ही कहा है कि पिछली मॉनेटरी पॉलिसी जो कि जून को हुई थी 10 जून को, उसमें जो है 4 साल बाद 150 बेसिस पॉइंट की कमी हुई थी और जो शरह सूद है 22% से कम होकर 20.5% कर दी गई थी। और यहाँ पे सर्वे में ये भी कहा गया कि जून 2025 तक शरह सूद में तकरीबन जो है 4.5 से 5.5% की कमी की तवक्को की जा रही है। जून 2025 तक शरह सूद जो इस वक्त 20.5% घटकर 15 से 16% तक रहने के तवक्को की जा रही है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने हमें अपडेट किया। कमिश्नर कराची के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। दफ़ा 144 की खुली खिलाफ वर्जी जारी है। पाबंदी के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद हब कैनाल में नहाने पहुंच गई। पुलिस अवाम को दूर रखने में नाकाम हो गई। अक्सर शेख से मज़ीद तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं हब कैनाल पर और जैसे कि हमने साहिल समंदर पर देखा था कि कमिश्नर कराची ने पाबंदी लगाई थी समंदर में नहाने के लिए, इसी तरीके से उन्होंने हब कैनाल पर भी पाबंदी लगाई थी कि 1 महीने तक यहाँ पर कोई नहीं नहाएगा। लेकिन उसके बावजूद हमने यहाँ पर आकर देखा कि बड़ी तादाद मौजूद है जो पानी में नहा रही है। मेरा कैमरामैन सज्जाद जो है वो ड्रोन की मदद से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग पाबंदी के बावजूद पानी के अंदर नहा रहे हैं। कमिश्नर कराची ने यहाँ भी दफ़ा 144 लगाई थी, लेकिन उनके जो अहकामात थे अवाम ने और पुलिस ने कमिश्नर कराची के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। यहाँ हमें पुलिस का कोई भी एक एहलकार नज़र नहीं आ रहा जो अवाम को रोके, जो इनको यहाँ ना आने दे। जो हमने सीवियो पर और हॉक्स बे के साहिल पर देखा था वही सारा मंजर हमने यहाँ पर भी देखा है कि अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है जो साहिल की तरह कैनाल पे भी नहा रही है। ये वो कैनाल है जो कराची को पानी फराहम कर रही है, लेकिन लोग यहाँ पर पाबंदी के बावजूद नहाने के लिए आ रहे हैं। और इसी तरीके से जो हॉक्स बे और सीवियो के मंजर थे कि वहाँ भी कोई एक एहलकार मौजूद नहीं था। जो दफ़ा 144 लगाई गई थी उसकी खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। दफ़ा 144 की कोई अमल नहीं कर रहे कमिश्नर कराची के जो अहकामात थे। पुलिस ने भी और जो हमारे अवाम हैं, हमारे शहरी हैं, उन्होंने भी हवा में उड़ा दिए हैं। जो पुलिस के एहलकार यहाँ मौजूद होने चाहिए थे, जिनको यहाँ पर रहना चाहिए था अवाम के लिए, अवाम की हिफाजत के लिए, ना वो यहाँ पर मौजूद है, ना अवाम हमारी सुन रही है। यहाँ पाबंदी लगाने के बावजूद दफ़ा 144 की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। पुलिस का पूरे रास्ते हमने कोई अमला नहीं देखा और यहाँ भी हम मौजूद हैं और पुलिस का अमला यहाँ पर भी मौजूद नहीं है। जी, कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर है। शहर के बड़े हिस्से को इतवार की सुबह 5 बजे से 24 घंटे के लिए गैस बंदिश का सामना होगा। कौन कौन से इलाके शामिल हैं, मोहम्मद हमाद अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। कराची वालों के लिए एक और कड़ा इम्तिहान। कल सुबह 5 बजे से 24 घंटों के लिए गैस बंद रहेगी। SSGC के मुताबिक औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, न्यू कराची, FB एरिया, नॉर्थ नाजमाबाद, बल्दिया टाउन और मारीपुर समेत कई इलाकों में गैस बंद रहेगी। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में होटल से नाश्ता और खाना खरीदना मुमकिन नहीं। यही बहुत परेशानी रहेगी गैस की वजह से, न खाना बन सकता है, ना मतलब ये कि नाश्ता बन सकता है, और बाहर का खाना और अपना नाश्ता तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना गरीब आदमी, कहाँ से करेगा, मतलब गरीब आदमी बना ही नहीं सकते हम खाना। और गैस तो बहुत ज़रूरी है, मतलब ये कि अपना आवाम के लिए। अब लकड़ियाँ मिलती नहीं है, लकड़ियाँ जला नहीं सकते हम, चूल्हे बना नहीं सकते हैं, लकड़ियों के पकाए हम, लिहाजा ये बड़ी परेशानी हो जाएगी हमारे लिए। तो
शहरियों ने LPG महंगी होने की वजह से गैस सिलेंडर भी दस्तरस से बाहर होने का शिकवा किया। हम पहले ही परेशान हैं और इससे मज़ीद परेशानी बढ़ेगी लोगों की रेंज में नहीं है और गैस के रेट भी बहुत बढ़ गए हैं जो सुई गैस ने बढ़ा दिए हैं। उस पर भी इनको चाहिए कि इसके जो गरीब आवाम है उसको रिलीफ दिया जाए। बाकी LPG गैस भी बहुत महंगी है और फिर उससे सिलेंडर फटने के, घर में हादसे होने के बहुत मामला होते। गैस की बंदिश 24 इंच कतर 31 किलोमीटर ट्रांसमिशन पाइपलाइन को जोड़ने के बाइस की जाएगी। SSGC ने शहरियों को मशवरा दिया है कि आर्जी बंदिश के दौरान गैस का बंदोबस्त कर लें ताकि किसी भी जहमत से बचा जा सके। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। साबिक मुशीर बहरी उमूर और बिजनेसमैन महमूद मौलवी ने कहा है कि आवाम, ताजिर और सनतकार इतनी महंगी बिजली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। 50% से ज़ायद IPPs पाकिस्तानियों की ही हैं, जबकि तमाम मुकामी IPPs को कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म करने होंगे, तब ही रिलीफ मिल सकेगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। बिजली के बिलों में आए टैक्सेस जुल्म करार। मारूफ बिजनेसमैन महमूद मौलवी भी बोल पड़े, कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से अहम तजावीज़ दे दी। साबिक मुशीर बहरी उमूर और बिजनेसमैन महमूद मौलवी का कहना है कि आवाम, ताजिर और सनतकार इतनी महंगी बिजली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। बताया कि फी यूनिट बिजली पर भारी कैपेसिटी चार्जेस को हल करना ही होगा। सिर्फ कैपेसिटी और सूद के चार्जेस हटने से फी यूनिट बिजली 50% सस्ती हो जाएगी। ये भी कहा कि 50% से जायद IPPs पाकिस्तानियों की हैं। सबसे पहले मुकामी IPPs अपनी कैपेसिटी चार्जेस को खत्म करें। सारे IPPs की आप लिस्ट देखें, इसमें बहुत से IPPs जो है ओन्ड है, पाकिस्तानी ओनर्स हैं इसके, ठीक है ना। वो कोई भी अगर बाहर का नाम दिया मगर ज़्यादातर के पीछे पाकिस्तानी है। तो मैं तो कहूँगा कि पहले इंस्टेंस के ऊपर जो पाकिस्तानीज हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना ये जो फिक्स चार्जेस हैं ये इसको वेव करें। महमूद मौलवी बोले कि सिर्फ मुकामी IPPs की कैपेसिटी चार्जेस खत्म होने से कीमत 13 रुपए फी यूनिट कम हो जाएगी। हुकूमत को सर्कुलर ऑफ डेट के सूद कीमत में भी फी यूनिट 3 रुपए 23 पैसे खत्म करना होगा। साफ कहा कि बिजली की कीमत के हवाले से फौरी फैसले ना किए तो बहुत बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। ये फिक्स चार्जेस को ख़त्म होना ज़रूरी है और उसमें बहुत से और फिक्स चार्जेस के अलावा भी कि कुछ टर्म्स रखे हुए हैं कि जी इतना फ्यूल रखना पड़ता है और इतनी आपके पास फ्यूल की कैपेसिटी है, तो वो भी एक कॉस्टिंग है। तो उसको बैठ के देखा जाए कि जी उन कॉस्टिंगों को भी कम करें ना। देखिए कुछ पॉलिसीज़ बनी थी कि एक वक्त के लिए, आज इमरजेंसी के लिए उन पॉलिसीज़ में भी कुछ तरमीम करें ताकि उन लोगों को भी रिलीफ मिले। महमूद मौलवी का कहना था कि बिजली के बिल में आए चार्जेस जुल्म है। मौजूदा सूरत-ए-हाल में मजीद नुकसान मईशत के लिए ठीक नहीं होगा। कैमरामैन शाजिब के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि SECP ने माली साल 2023-24 में 27,542 नई कंपनियां रजिस्टर्ड की। मुल्क में रजिस्टर्ड कंपनियों की कुल तादाद 2,22,697 हो गई है। नई रजिस्टर होने वाली कंपनियों में 58% प्राइवेट लिमिटेड और 39% सिंगल मेंबर कंपनियां हैं। अशरफ खान से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2023-24 में जो कंपनी रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया कि 27,542 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसके बाद मुल्क भर में जो है रजिस्टर्ड कंपनी की कुल तादाद 2,22,697 हो गई है। और नई रजिस्टर्ड होने वाली कंपनी में 58% प्राइवेट लिमिटेड, 39% सिंगल मेंबर कंपनियां थी। कंपनी रजिस्ट्रेशन डिजिटलाइज होने के बाद 99.8% कंपनियां ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुई हैं। और SECP ने बताया कि सबसे ज्यादा कंपनियां जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसमें 4,129 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। दूसरे नंबर पर ट्रेडिंग में 3,666 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। और यहाँ पे तीसरे नंबर पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के शोबे में 3,302 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। और यहाँ खिदमात, सियाहत और दीगर तालीम के शोबे में भी कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। मजमूई तौर पर बताया गया है कि गैर मुल्की सरमाकारों की जाने से 68 कंपनियों में शराकत दारी भी सामने आई है। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। सेहत के हवाले से अच्छी खबर शामिल करेंगे। कतर अस्पताल औरंगी टाउन में पहली बार 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद ICU कायम कर दिया गया, जहां पर तमाम सहूलतें मुफ्त फराहम की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इब्राहिम रिंद। जी देखें, बिल्कुल औरंगी टाउन की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कतर औरंगी टाउन में ICU कायम किया गया है। और इस ICU में अगर प्राइवेट की बात की जाए तो
रोजाना की बुनियादों पे हजारों रुपए के अखराजात होते हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ अस्पताल के MS डॉक्टर राशिद सिराज खानजादा साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे इस ICU की अहमियत के बारे में। सर बताइएगा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, और आवाम के लिए बताइएगा कि कितना बड़ी खुशखबरी है कि इलाके की आवाम को इतनी बड़ी सहूलत दे रहे हैं जो कि प्राइवेट में कोई सोच भी नहीं सकता। क्या कहेंगे सर? इस तरह है कि ये हमारा जो कतर हॉस्पिटल औरंगी टाउन है, ये एक रिमोट एरिया है। हमारे पास 24 घंटे गायनी के अंदर सर्जरी की सहूलत मुहैया है। उसके अलावा सर्जरी डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, इसी तरह ENT डिपार्टमेंट भी सर्जरीज करता है। आज से पहले हमारे पास जब यहाँ पे मरीज़ जो सर्जरी के बाद ख़राब हो जाया करते थे और उनको एक क्रिटिकल केयर की ज़रूरत पड़ती थी, तो उसके लिए हमारे पास ऐसी सहूलत मुहैया नहीं थी, जिसकी वजह से हमें इमरजेंसी के अंदर यहाँ से पेशेंट को ऐसी जगह शिफ्ट करना पड़ता था जहाँ पे कई बार उनको बेड नहीं मिला करते थे या वो बहुत तकलीफ़ में हुआ करते थे। हमारे सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर उमर फतेह की काविशों के साथ और दूसरे हमारे जो यहाँ के इंतज़ामिया के लोग हैं उनकी मेहनतों के साथ कि हम यहाँ पर एक सर्जिकल ICU, जिसके अंदर गायनी का पेशेंट जो ड्यूरिंग ऑपरेशन ख़राब हो जाए और अल्लाह ना करे सर्जरी का कोई पेशेंट जिसको वेंट की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो उसको हमें आगे ना भेजना पड़े और उसको हम यहीं पर मैनेज कर लें। बहुत शुक्रिया। ये थे खानजादा साहब जिन्होंने कहा कि ये इलाके की आवाम के लिए बेहतर सहूलत है, और अगर प्राइवेट में अगर इसकी बात की जाए तो रोजाना की बुनियादों पे हजारों रुपए अखराजात आते हैं जो कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर उनको तमाम तर सहूलियात मुफ्त होंगी, जो कि अस्पताल की इंतजामिया का एक अच्छा कारनामा भी है। जी। फेयर हॉल में मौजूद लियाकत लाइब्रेरी और सादक़ैन गैलरी की तज़य्युन व आराइश का काम तेज़ी से जारी है। मेयर कराची के अहकामात पर सकाफती विरसे को असल हालत में बहाल करने से मुतल्लिक इक़दामात उठाए जा रहे हैं। शुएब मुख्तार से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची की कदीम इमारत फेयर हॉल की लियाकत लाइब्रेरी में मौजूद हूँ और बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से इस लाइब्रेरी की तज़यीन और आराइश का काम जो है मुकम्मल होने के करीब पहुँच चुका है। लियाकत लाइब्रेरी के तज़यीन और आराइश जो है इस वक्त जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं लाइब्रेरी के इंचार्ज मोहम्मद सलीम। ये बताइएगा, सादक़ैन आर्ट गैलरी भी मौजूद है यहाँ पर फेयर हॉल की लाइब्रेरी के ऊपर की मंजिल पर, तो क्या उसकी भी तज़यीन और आराइश जारी है इस वक्त, और वो भी कब तक मुकम्मल कर ली जाएगी और शहरियों के लिए खोल दी जाएगी आर्ट गैलरी? देखें, आर्ट गैलरी जो है वो सादक़ैन आर्ट गैलरी 1990 में वजूद में आई है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे सादक़ैन आर्ट गैलरी है। सादक़ैन एक बड़े आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान की, उनकी डेथ हो गई 10 फरवरी 1997 में। सादक़ैन साहब ऊपर ही रहते थे। उनके ज़िंदगी का लास्ट काम है, एक बहुत बड़ा म्यूरल है जो ऊपर छत पे बनाया उन्होंने, और वो अभी इनकम्प्लीट है। अच्छा, गैलरी में जो है तकरीबन काम ऊपर हो गया है, बस वो भी अपने आखिरी मराहिल में चल रहा है काम इंशाल्लाह। और आर्ट गैलरी जो है वो कराची की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है। हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी पेंटिंग गैलरी सादक़ैन में डिस्प्ले करे, और गैलरी सादक़ैन में तकरीबन 200 से 250 पेंटिंगें जो है हम एक वक्त में डिस्प्ले कर सकते हैं। इतनी बड़ी हमारी आर्ट गैलरी है। आर्ट गैलरी जो है सादक़ैन के नाम से है। सादक़ैन एक लीजेंड है पाकिस्तान के, बड़ा नाम है, और हमारे पास ज़्यादातर फॉरेनर आते हैं उनके काम को देखने के लिए, और काम के दौरान भी हमने गैलरी को, लाइब्रेरी को ओपन रखा हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि लाइब्रेरी की तज़यीन और आराइश का काम जो है जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस आर्ट गैलरी को भी जल्द अज जल्द जो है आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। जी। बलोच कॉलोनी में ऑयल टैंकर हादसे पर सदर ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन कहते हैं कि ऑयल टैंकर्स की मुकम्मल फिटनेस पर तवज्जो दी जाती है। ऐसे ड्राइवर्स को ऑयल टैंकर चलाने ही नहीं दिया जाता जिसके पास लाइसेंस ना हो। मज़ीद बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी। जैसे कि जुमरात के रोज़ बलोच कॉलोनी के पुल पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक ऑयल टैंकर जो है वो पुल पे पलट गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जो है वो जांबाक हुआ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला आफरीदी, जो कि ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर हैं। इनसे जानते हैं कि जब माल बरदार गाड़ियाँ और बिलखुसूस ऑयल टैंकर्स के हवाले से बात की जाए, ये जब सड़कों पर निकलते हैं तो क्या हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं, और इसी के साथ साथ हम ड्राइवरों के हवाले से भी बात करते हैं कि आबिद साहब ये बताइएगा कि एक तासुर ये दिया जाता है
کہ جو آئل ٹینکرز کے جو ڈرائیور ہیں، بالخصوص مال بردار گاڑیوں کی اگر بات کریں اور آئل ٹینکرز کے ڈرائیورز کی بات کریں تو وہ تیز رفتاری دکھاتے ہیں اور تربیت یافتہ نہیں ہوتے ہیں اور جلد بازی میں ہی وہ ایسے اقدامات کرتے ہیں جس کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں. اس پہ کتنی صداقت ہے، پہلے یہ بتائیے گا. یہ ڈرائیور کے بارے میں آپ نے بات کیا تھا، وہ ڈرائیور ہم لوگ نہیں رکھتے جب اس کو لائسنس نہیں ہوتے، اس کا ٹریننگ نہیں ہوتے. سب سے پہلے گورنمنٹ کو اس کو لائسنس دیتے ہیں نا، اور پھر بعد میں ہم لوگ اس کی ٹرائی لیتے ہیں، پھر بعد میں اس کو ہم گاڑی پہ اس میں چڑھاتے بیٹھاتے ہیں نا، ڈرائیور کو چلاتے ہیں نا. دوسری بات آپ نے بتا دیا گاڑی کا، ہم لوگ یہاں سے جو گاڑی نکالتے ہیں سب سے پہلے اس کا مینٹیننس کا خیال کرتے ہیں نا. راستے میں بہت مسئلے مسائل آتے ہیں، بہت تکلیف ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے تکلیف ہوتے ہے کہ راستے میں گاڑی گر جائیں گے یا کوئی اور ایکسیڈنٹ کریں گے اور کسی کو نقصان ہو جائیں گے. پہلے تو اس ٹینکی میں 40,000 لیٹر تھا جو گر گیا، اور اس میں بھی 40,000 لیٹر ہے. ایک خانے سے اس میں کم از کم 4 خانے پارٹیشن ہم لوگوں نے رکھا ہے. جب بھی پارٹیشن نہیں ہوگا اور 1 یا 2 خانہ ہوگا، ایسی مثال یہ جب گاڑی بریک مارتے ہیں نا، گاڑی کو آگے دوسری گاڑی کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں نا. جیسے یہ ٹیم پلیٹ ہے اور اس میں پین ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا. سب سے پہلے تو اس کا مینٹیننس ہم لوگ کرتے ہیں. یہ ٹیم پلیٹ ہے، یہ ٹیم پلیٹ ہے، اس میں جو گھس گیا وہ اس کا پین ہے. یہ اس کا لاک ہے چابی، جو چابی اس کا ہے نا. سب سے پہلے اس کا مینٹیننس ہم لوگ کر رہے ہیں. جو دسایا تھا وہ تو قدرتی تھا. گاڑی بھی تیز نہیں چلاتے ہم لوگ کے ساتھ. اس کا ٹریکر سسٹم ہوتا ہے، جو گاڑی تیز چل رہے پھر کمپنی بلیک لسٹ کرتے ہیں. جی بالکل، یہ تھے عبداللہ آفریدی کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق اور جو انٹرنیشنل سطح پر جو اس طریقے کی مال بردار گاڑیاں یا پھر پیٹرولیم مصنوعات دی جانے والی گاڑیاں بنتی ہیں تو اس کے ساتھ ایک ہی یہ خصوصی طور پر پلیٹ کہلاتی ہے جسے پن پلیٹ کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ ایک لاک منسلک ہوتا ہے. اور یہ جب منسلک ہونے کے بعد پھر یہ جو ہے وہ گاڑیاں اپنی جو ہے مال بردار گاڑیاں جو ہے وہ رواں کرتے ہیں روڈوں پہ. تاہم تمام تر مینٹیننس کو یقینی بنایا جاتا ہے اور اسی کے بعد جو مال بردار گاڑیاں ہیں وہ سڑکوں پر رواں ہوتی ہیں. جی محمد علی جناح یونیورسٹی میں 11ویں سالانہ تقسیم اسناد کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں 450 طلباء و طالبات کو اسناد تفویض کی گئیں. سلور میڈل حاصل کرنے والے طالب علم خالد کہتے ہیں کہ ان کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار ان کے والدہ اور ان کی اہلیہ کا ہے. محمد علی جناح یونیورسٹی کی 11ویں سالانہ تقسیم اسناد کی تقریب میں 450 طلباء و طالبات کو اسناد تفویض کی گئیں. فرحان خان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے، بتائیے گا. جی بالکل، اس وقت جو ہے میں آپ کو محمد علی جناح یونیورسٹی سے رپورٹ کر رہا ہوں کہ 11 کانوکیشن تھا جس میں سے 400 سے زائد طلباء و طالبات کو آج اسناد تصویر کی گئی ہے. اس وقت ایک ایسے ہی طلباء ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے نہ صرف گریجویٹ کیا بلکہ ساتھ ہی جو ہے وہ سلور میڈل بھی حاصل کیا اپنی والدہ اور اپنی وائف کی موجودگی کے اندر. ان سے بات بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. مجھے بتائیے گا کہ کتنی خوشی ہو رہی ہے، ایک طرف آپ کی والدہ موجود ہے، ایک طرف آپ کی وائف موجود ہے، اور کس فیکلٹی کے اندر آپ نے جو وہ سلور میڈل حاصل کیا؟ میں نے جو ہے MS ان اکنامکس اینڈ فائنینس میں اپنا MS کمپلیٹ کیا ہے اور 3.7 GPA کے ساتھ میں نے کمپلیٹ کیا. اس کی وجہ سے مجھے سلور میڈل ریسیو ہوا ہے. میں نے اپنا MS کمپلیٹ کیا ہے ان اکنامکس اینڈ فائنینس، میری GPA ہے 3.7 جس کی وجہ سے مجھے سلور میڈل ملا ہے. اور اس کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی میری مدر اور میری وائف کو جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے جو ہے مدر نے شروع سے لے کے مجھے جو ہے اسٹڈی میں انوالو رکھا اور وائف نے آفٹر ورڈز مجھے ٹائم دیا تاکہ میں یہ اچیو کر سکوں. ہم والدے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے. مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کتنا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے جو وہ سلور میڈل حاصل کیا اور جب وہ اسٹیج پہ تھے تو کتنا جو وہ ایک فخر محسوس کریں گے؟ مجھے بہت خوشی ہوئی اور کہ بھی میرے بیٹا آج اس قابل ہوئے، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. جی بالکل، ساتھ ہی ساتھ جو وہ ہم ان کی وائف سے ہی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا کیسا پراؤڈ مومنٹ ہے آپ کے جو وہ ہسبینڈ نے جو وہ نہ صرف اتنے بڑے کراؤڈ کے اندر سلور میڈل حاصل کیا بلکہ آپ لوگوں کے لیے وہ باعث فخر بن کے جو وہ اسٹیج پہ اپنے آپ کو جو وہ پریزنٹ کیا. جی دیکھیے، یہ ایکچولی سکسیس ایز این انڈیویجول نہیں ہے، یہ ایز اے فیملی سکسیس ہے، تو اس لیے بہت اچھا فیل ہوا. جی بالکل، یہ ایک انڈیویجول سکسیس نہیں کیونکہ بچپن سے لے کے جو وہ ایک والدہ کا ساتھ ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کے بعد جو وہ ایک وائف بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے اور پھر جب دونوں کی موجودگی کے اندر اس طریقے کا اعزاز آئے تو پھر ایک جو ہے وہ قابل فخر بات ہوتی ہے. 11 کانوکیشن تھا یہ محمد علی جناح یونیورسٹی کا جس میں 400 سے زائد طلبہ کے اندر اسناد تقسیم کی گئی. 30 سے زائد طلبہ طالبات نے جو وہ گولڈ میڈل بھی حاصل کرے جبکہ بہت سارے طلبہ نے سلور اور برونز میڈل بھی حاصل کیے. جی